بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ تمام صحافی حضرات کا شکر گزار ہوں کہ اپنی گو مصروفیات کے باوجود آپ نے یہاں پر ہمیں وقت دیا اور ہمیں سنا. سب سے پہلے میں اپنے پروفیسرز اور لیکچررز ایسوسی ایشن کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے سی ایم صاحب کی ریکویسٹ پہ، درخواست پہ اپنا جو یہ احتجاج ہے، اپنا جو یہ بائیکاٹ ہے اور پروٹیسٹ ہے، اس کو کال آف کیا. تو میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ان کے دل میں وہ درد تھا بلوچستان کے طلباء کا، ان کے مستقبل کا، کہ ان کا یہ عمل کہیں خدا نخواستہ ان بچوں کے مستقبل پر اثر انداز نہ ہو. اور سی ایم صاحب کا جو ویژن تھا، انہوں نے کل سی ایم صاحب کے ساتھ ملاقات میں اس بات کا اعتراف بھی کیا کہ جو آپ صوبے کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں، تو ہم تمام جو ہے ٹیچنگ سے ریلیٹڈ تمام جو اساتذہ کی، پروفیسرز ہیں، پی ایچ ڈیز ہیں یا ہمارے لیکچررز ہیں، ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کنٹریبیوشن کریں، ہماری کنٹریبیوشن آپ کے ساتھ ہو، تاکہ بلوچستان میں جو آپ کا تعلیم کا، اسکالرشپ کا، یا پی ایچ ڈیز کے لیے، یا ہائر ایجوکیشن کے لیے، یا جو ہے ٹرانسجینڈرز کے لیے، مائنورٹیز کے لیے، یا ڈسٹرکٹ کوٹے میں جو ہے ٹاپرز کے لیے آپ کا جو ویژن ہے، اس کو ایک بہترین انداز میں، ایک بغیر انگلی اٹھائے ہوئے ایک ایسے فورم سے جو قابل طلباء ہیں ان کی سلیکشن، ان کی جو کامیابی متوقع ہو، تاکہ وہ آگے فردر ایجوکیشن کوالٹی والی وہ جاری رکھ سکیں اور اس سے صوبے میں جو ہمارا ویژن ہے وہ پایہ تکمیل پر پہنچ سکے. تو یہی درخواست انہوں نے ہمارے اساتذہ کے سامنے رکھی، ہمارے پروفیسر صاحبان کے سامنے رکھی، اس امید کے ساتھ کہ آپ ہمارے صوبے کا سرمایہ ہو. بغیر آپ کے ہمارے مستقبل نے چلنا نہیں ہے. تو انہوں نے، ہمارے جو ایسوسی ایشن کے بھائیوں نے، دوستوں نے سی ایم صاحب کی اس بات کی عزت رکھی اور تمام بلوچستان کے طلباء کے معاملات، طلباء کی جو مستقبل کے وسیع تر مفاد میں یہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے کال آف کر دیا. اس میں ساتھ میں کہتا چلوں کہ ہمارے ایجوکیشن منسٹر صاحبہ نے بھی بڑی کوششیں کی، میٹنگ کی کہ معاملہ سارٹ ہو. ان کا ایک کردار رہا ہے. ہمارے نور محمد دمڑ صاحب ہیں، ان کا ایک بہت بہترین کردار رہا ہے. بخت محمد کاکڑ صاحب کا، کئی میٹنگوں میں ہم جو ہے پروفیسر اور لیکچرر صاحبان کے ساتھ جو ہے میٹنگوں میں رہے ہیں. تو اچھی جو ہمارے سامنے مشاورت آئندہ کے لیے آئی ہیں. چونکہ اب ہم ایک انٹرم سیٹ اپ جو ہے ایک سی ایم صاحب بنا چکے ہیں، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ اس اسٹرکچر کو جو ہمارے ایگزامینیشن کا ہے اس کو بہتر کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس موقع پر اپنے تمام تحفظات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے جو ایسوسی ایشن نے قدم اٹھائے وہ لائق تحسین ہے، اور میں ان کا شکر گزار ہوں. ابھی میں جو ہے ابھی چلے گا جی، ابھی وہ بات کریں گے. بہت شکریہ آپ میڈیا کا کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت گزارا اور اس اہم ایشو کے اوپر ہمارا ورژن اور ہمارا نیریٹیو آپ لوگوں نے اس کو لینے کے لیے آپ یہاں جمع ہوئے. ہم شکر گزار ہیں سی ایم صاحب کا، اور سی ایم صاحب کی جانب سے جو کمیٹی تشکیل دی گئی تھی، جو انتہائی کریڈیبل کمیٹی تھی، جن کے اندر 3 ہماری انتہائی معزز ممبران صوبائی اسمبلی و صوبائی وزراء اس کے اندر تھے، جن میں اجی نور محمد دمڑ صاحب، امیر شعیب نوشروانی صاحب اور بخت محمد کاکڑ صاحب تھے. ہم اس کمیٹی کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بہت محبت سے اور انتہائی مثبت انداز میں ہمارے اس معاملے کو ٹیک آف کیا، اور اس سلسلے میں ہمارے 2-3 میٹنگز ہوئی اور بہت ساری چیزوں پہ گفت و شنید ہوئی. اور پھر اس معزز کمیٹی نے ہمارے جو گریونسز تھے یا تحفظات اور خدشات تھیں وہ ہانریبل سی ایم صاحب تک پہنچائی. اور کل کے ڈیٹ میں ہمارا سی ایم صاحب کے ساتھ نشست ہوا، میٹنگ ہوا، جس کے اندر ہماری یہ جو ہانریبل اور انتہائی قابل احترام ہمارے کمیٹی کے ممبران بھی وہیں تھے، اور اسکول سیکرٹری صاحب وہی تھے، اسکول ایجوکیشن کے سیکرٹری کالجز صاحب وہیں پہ تھے. وہاں پر اس پورے سیناریو کے اوپر بات ہوئی. وہاں پر سی ایم صاحب کے سامنے ہم نے اپنے تحفظات کا اور خدشات کا اظہار کیا، اور ہمارے تحفظات اور خدشات سننے کے بعد سی ایم صاحب نے اپنی انٹینشنز اور ایجوکیشن ریفارمز کے اوپر اپنی بات رکھی. باہمی گفت و شنید میں ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ جو بات ہم کرنا چاہ رہے تھے یا جو ہمارا مدعا تھا، ہمارے سی ایم صاحب کا تو وہ ویژن تھا
यानी ये उनके गवर्नमेंट का ये विज़न था कि एजुकेशन इस प्रायोरिटी पे है और एजुकेशन के अंदर हमने रिफॉर्म्स लेके आनी है। तो वहाँ पर एक तवील के घंटे की गुफ्त शनीद के बाद हम इस नतीजे पे पहुँचे। सीएम साहब ने एक बुनियादी बात ये है कि सीएम साहब ने एक बहुत गुड जेस्चर का हमें वहाँ पे रिफ्लेक्शन दिया और मैंने वहीं उस नशस्त के अंदर भी ये बात की कि सीएम साहब के एजुकेशन के हवाले से जो रिफॉर्म्स हैं उसको हम कदर के निगाह से देखते हैं, जिसमें हमने BRC लोरालाई के अंदर जो सिलेक्शन हुई एक मेरिट के ऊपर हमने उसके ऊपर भी बात रखी। हमने जो स्कॉलरशिप का जो मामला है, जो विज़न है हमारे गवर्नमेंट का, उसको हमने उसकी सताइश की, उस पर भी हमने जो है वहाँ पर हमने अपनी बात रखी। तो सीएम साहब ने वहाँ पर हमें जो है प्रोफेसर्स को, लेक्चरर्स को और एजुकेशन डिपार्टमेंट से वाबस्ता असातिज़ा कराम के लिए वहाँ पे जो अपने एहसासात का और अपने जो जज्बात का इजहार का वो काबिल सताइश थी। और यकीन करें मैंने उस फोरम पे यही बात की कि मुझे आज ये महसूस हो रहा है बेइज्जत एक प्रोफेसर के और बेइज्जत एक उस्ताद के कि मैं एक ऐसी जगह पे आया हूँ अपने चीफ एग्जीक्यूटिव के सामने और अपने मुअज़्ज़ज़ मेंबरान असम्बली के साथ बैठा हूँ कि जहाँ उन्होंने हमारी वर्थ को इस समाज के अंदर, इस निज़ाम के अंदर हमारी कंट्रीब्यूशन को सराहा है। और अब गुफ्त शनीद के अंदर हम इस बात पे पहुँचे कि जहाँ रिफॉर्म्स हो रही हैं तो बोर्ड ऑफिस पे रिफॉर्म्स की बात हुई। सीएम साहब ने ये गुजारिश की, सीएम साहब ने ये रिक्वेस्ट की बैसत चीफ एग्जीक्यूटिव के कि आप ये जो इंटीरियम सेटअप हमने ट्रायल बेस पे बोर्ड ऑफिस के अंदर हमने इसकी मैनेजमेंट की है, आप हमारे साथ इस इंटीरियम सेटअप के अंदर कंट्रीब्यूट करें, हमें इनपुट दें, इनके रिफॉर्म्स के हवाले से हमें सजेशंस दें। सो अब हम यानी एसोसिएशंस और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान बोर्ड ऑफिस के इस इंटीरियम सेटअप के मैनेजमेंट में एक पेज के ऊपर मौजूद है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम भी ये चाहते हैं और गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि एजुकेशन में भी रिफॉर्म्स हो और बोर्ड के अंदर भी रिफॉर्म्स। तो सीएम साहब के रिक्वेस्ट पे, उनके हम्बल रिक्वेस्ट पे जिसके हम शुक्रगुजार हैं, 6 महीने के लिए, कोई 7 महीने के लिए सीएम साहब ने कहा कि ये जो इंटीरियम सेटअप मैनेजमेंट हमने की है इसमें कंसेंसस से, कोऑर्डिनेशन से, कोलैबोरेशन से हम मिलकर इस इंटीरियम सेटअप के अंदर इनपुट देंगे। तो 6 महीने के बाद फिर इस मामले को हम लोग इसके ऑडिट करेंगे, इसकी असेसमेंट करेंगे। और आफ्टर हाल ये बात बिल्कुल क्लियर हुई इस फोरम पे कि जिस तरह माजी में यहाँ पर एजुकेशनिस्ट या एकेडमिशियंस ने अपने सर्विसेज दिए, आफ्टर हाल इस मैनेजमेंट के बाद, इस इंटीरियम मैनेजमेंट के बाद, यहाँ बोर्ड ऑफिस के अंदर रिफॉर्म्स आने के बाद हतमी तौर पर ये पोजीशंस और बोर्ड के अंदर बाकी तमाम पोजीशंस के ऊपर इंशाअल्लाह अज़ीज़ एजुकेशन बैकग्राउंड के लोग, एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग और एकेडमिक से वाबस्ता लोग इंशाअल्लाह अज़ीज़ यहाँ पर अपनी खिदमत सर अंजाम देंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मीर साहब ने बात कर दी गवर्नमेंट की तरफ से कि इन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छी तारीफ की आपकी, लेकिन अगर आप देखें कि मैट्रिक इम्तिहान हुए उस वक्त हुकूमत ने असातिज़ा पे अपने इत्तेफाक का इज़हार किया, उसकी जगह पे असातिज़ा की जगह पे बाहर के जो लोग थे गवर्नमेंट के उनको लगाया गया। आज भी अगर आप देखें तो वेटनरी डॉक्टर और ज़राअत ऑफिसरों को जो है बोर्ड जो है मुख्तलिफ सेक्शन में लगाया गया इम्तिहानात के लिए। तो ये मतलब बोर्ड का मसला अपनी जगह पर, इनको भी आप लोगों ने आज क्या कुछ दिखाया कि ये उस बात पर भी राज़ी हो गए कि अपने लोगों को जो इन पर अपने इत्तेफाक का इज़हार किया गया है आज वो उस पर भी खुश है। देखें, तालीम के लिए कोई भी शख्स अपनी सर्विसेज देना चाहे हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट पे ताल्लुक़ रखता हो। लेकिन चूँकि प्राइमरी ज़िम्मेदारी है हमारी एजुकेशनिस्ट की, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ोरम आज इनका ये कॉल ऑफ करना अपना प्रोटेस्ट, इससे बड़ा क्या सबूत है कि इन्होंने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद सीएम साहब की रिक्वेस्ट पे अपनी सर्विसेज दोबारा जो है सुपुर्द कर दी कि पूरी तरह तैयार हैं। तो मेरा ख़्याल से अगर गवर्नमेंट कोई इनिशिएटिव उठाती है, चाहे गलत सही, बाज़ औक़ात आपके मामलात या आपका एक्शन है उसका जो है एक रिएक्शन कभी कभी आ जाता है, लेकिन कभी कभी आपके एक्शन से, आपके तजुर्बे से चीज़ें बेहतर होती हैं। लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी और बेहतरीन एग्जाम्पल हमारे दोस्तों ने एसोसिएशन के, हमारे उस्ताज़ा हमारे काबिल एहतराम है कि उन्होंने सेट की कि उसके बावजूद भी आज भी ये कह रहे हैं कि हमारी सर्विसेज जब भी जो है गवर्नमेंट को जहाँ पर भी चाहिए हो
रिफॉर्म्स की हद तक हो, मीटिंग्स की हद तक हो, स्ट्रक्चर को कड़ा करने की हद तक हो, या जो इंटरिम पीरियड में कंसेंसस कंट्रीब्यूशन की हद तक हो, हम मुकम्मल आपके साथ हैं। तो इनकी तरफ से जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो अफेक्ट हो रहे हैं, इनकी तरफ से अगर ये बात आना कि हमारी तरफ से बावजूद हमारे तहफ़्फ़ुज़ात के हम आपके साथ इकट्ठे खड़े, मेरे ख्याल से बात ख़त्म हो जाती है। वज़ीर-ए-आला साहब ने कहा था मैं किसी दबाव में नहीं आऊँगा, और ख़ासकर के मुलाज़मीन के हवाले से उन्होंने बताया था कि एहतजाज के ज़रिए इनके किसी मुतालबे पर जो है हम बरामद नहीं करेंगे, ना ही इसको मंजूर करेंगे। इस दफ़ा मामला तो मुख्तलिफ लग रहे हैं। जो एक उस्ताद की जगह है, कल सीएम साहब ने जो अल्फाज अदा किए, शायद चूँकि वो अल्फाज उस मीटिंग और मजलिस की अमानत है, मैं नहीं कर सकूँ इस फोरम में। ये हमारे प्रोफेसर साहिबान इस बात के गवाह हैं कि उन्होंने दबाव रखा या वो मोहब्बत प्यार रखा जो एक बाप बेटे के साथ है, बेटा बाप के साथ करता है। कल वो दबाव था। अगर उस दबाव को आप दबाव समझते हैं तो मेरे ख्याल से यहाँ हमारे उस्ताज़ा के सामने हमारा दबाव आज जोड़ने का, प्यार मोहब्बत का बन सकता है, जिससे हमारी मुस्तकबिल बन सकती है। तो यहाँ दबाव नहीं आता। आपका एक मुतालबा था कि चेयरमैन बोर्ड को हटाया जाए, आपने मुज़ाकरात भी नहीं किए इस हवाले से, तो क्या चेयरमैन बोर्ड को हटाया जा रहा है या आपको वक्त दिया जा रहा है कि इतने बाद अरसे बाद हटाया जा रहा है? ये बात हमने यहाँ रखी कि 6 मंथ्स का ये इंटीरियम सेटअप है। इसमें एसोसिएशन और गवर्नमेंट बोर्ड ऑफिस के रिफॉर्म्स के हवाले से काम करेंगे। तो ये 6 महीने का जो ये ड्यूरेशन है, ये इंटीरियम मैनेजमेंट का और रिफॉर्म्स का है। और उसके बाद इंशाल्लाह उल अज़ीज़ एक एजुकेशनिस्ट को आप यहाँ देखेंगे इंशाल्लाह। बदकिस्मती से ये जो हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम में, इसकी ज़िम्मेदारी मेरे ख़्याल से हमसार बलूचिस्तान के 90% लोगों की बनती है। आम शहरियों की भी बनती है, सरकारी अफसरान की भी बनती है। किसी एक शोबे पर, किसी एक शख्स पर इल्ज़ाम लगाना दुरुस्त नहीं है। हाँ, किसी पर जब इल्ज़ामात अभी आ गई है, उसकी इंक्वायरी चल रही है, वो इंक्वायरी जब फाइनल होकर रिपोर्ट आएगी, ज़िम्मेदारों का तयन होगा। लेकिन मैंने कहा बदकिस्मती से ये हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम के ज़िम्मेदार हम सब खुद हैं। मैं भी अपने उस्ताज़ा के साथ यही बात कर रहा था कि मैं भी ज़िम्मेदार हूँ। हम हर शख्स ज़िम्मेदार है कि सिफारिशों के कल्चर में हम सब इन्वॉल्व हो गए। क्योंकि अगर ये एक दिन का मामला होता, ये आज ही शुरू होता तो ठीक है। ये कई गुज़िश्ता एक दाइयों से जो हम सब की मुश्तरका ज़िम्मेदारियों या ख़राबियों की वजह से इन हालात ने जन्म लिया है। अब इसको बेहतर करना है तो मिलकर ही बेहतर करना है। सर, आपके साथ ड्यूटी पर हैं और ड्यूटी पे लगे हैं? बिल्कुल इनके जी बिल्कुल, हमने अपना कॉल ऑफ कर लिया है और हमने जो अपनी सर्विसेज विड्रॉ की थी बोर्ड ऑफिस से, तो हम अपने सर्विसेज वापस देना चाहते हैं। अगर गवर्नमेंट को या बोर्ड ऑफिस को हमारी सर्विसेज रिक्वायर्ड होंगी देन बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से, क्योंकि अभी हज़ारों बच्चों का मुस्तकबिल अभी जो है इस एग्ज़ाम के हवाले से यहाँ पर वाबस्ता है, तो हम एसोसिएशंस जो है उस हवाले से अपने सर्विसेज जो हैं वो देंगे। देखो, एक बात ये हुई है ना कि अब रिफॉर्म्स की बात हुई है, अब दोनों तरफ से कंट्रीब्यूशन की बात हुई, इनपुट की बात हुई है। तो मेरे ख्याल में जब मामला तो जोड़ने की तरफ हो जा रहे हैं तो हमें भी थोड़ा बहुत एतमाद कर लेना चाहिए। कल हमारे दोस्तों ने गुजारिशात रखी कि एक्ट का, चूँकि अब बात एक्ट से निकल कर आपसी रवादारी कंसेंसस की तरफ गए, ठीक है ना जी। उसमें अगर आप एक्ट को पढ़ें, उसमें जो है अब उसकी इंटरप्रिटेशन पे जाएंगे, वो एक नया पेंडोरा बॉक्स खुलेगा ना। हमारे एसोसिएशन चाह रही है कि हम जाके उसकी इंटरप्रिटेशन पे जाएं, क्योंकि उसमें कुछ 1-2 पॉइंट ऐसे ऐड हैं कि उसमें इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत है। ना हमारे दोस्त चाह रहे हैं, ना गवर्नमेंट चाह रही है, क्योंकि अब एक पेज पे इकट्ठी हुई इंटेंशन ये कि हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम को बेहतर करना है। मेरे ख्याल से अब इस वक्त एक्ट से ज़्यादा ज़रूरी हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम है, इसको बेहतर करना है। क्या ये हकीकत है कि आपके लोग जो है वो इस बदजानती में मुलविस थे, पैसे लेके लोगों को पेपर करवाते थे? आप इस बात को मानते हैं? लोग एंटी करप्शन ने आप लोगों पर इल्ज़ाम लगाया? देखिए, बात ये है कि अगर इज्तिमाई बात की जाए ना, तो इस हवाले से मैं बिल्कुल इख्तलाफ रखूँगा। हो सकता है अफराद के अंदर कमी बेशी किसी फोरम पे, किसी लेवल पे रही होगी, इस हवाले से तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन बेशक इंतहाई रिस्पॉन्सिबल एक फ़र्द के और 3000 प्रोफेसर्स के नुमाइंदे के और ढेर सारी इस अलायंस, एजुकेशनल अलायंस के साथ मेरे साथ जो असातिज़ा कराम है, उस पियाफ में मैं बिल्कुल ये बात करता हूँ कि इज्तिमाई तौर पे
اگر ایسا تاثر خدا نخواستہ ہے تو اس تاثر کو ہم رد کرتے ہیں، لیکن انفرادی طور پہ کسی کی انفرادی فعل ہو سکتی ہے کہ وہ کس قسم کی ریگولیٹیز میں کہیں جا کر ملوث ہو۔ اسلام آباد نہیں اختلافات نہیں، اب وہ یہاں کوئٹہ میں موجود نہیں تھی، تو رات کو ہماری ان سے بات ہوئی کیونکہ وہ سفر سے آئی تھی، پھر لیٹ نائٹ ہمارے لیٹ آورس پہ بات ہوئی، پھر صبح ارینجمنٹس تھے ان کے ادر انگیجمنٹس تھے، تو انہوں نے ہمیں اجازت دی کہ ہماری طرف سے آپ جا سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں۔ تھینک یو جی، تھینک یو، بہت شکریہ، بہت نوازش۔